Am I audible, guys? Yes, sir. So today we are going to start biomolecules. Biomolecules में we normally study carbohydrates, proteins, ठीक है, विटामिन्स वगैरह जो मेनली हमको पढ़ना होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है एंड सम पार्ट ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स जिनसे आप प्रोटीन्स बनाते हैं। सबसे पहले तो एक नोट लिखो बेटा। We will start this chapter with a note. लिखिएगा। The complex organic molecules, such as the complex organic molecules such as carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, etc., which form the basis of life. Basis of life and build up living organisms. And also required for their growth and maintenance. Required for their growth and maintenance are called biomolecules. ये भी आप ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं, तो ये तो बायोलॉजी के हिसाब से है। Just to show the relation बेटा। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। So biomolecules are related to living organisms in the following manner, और ये ड्रॉ कर सकते हैं। We all know cell is the fundamental unit of life. Now we'll start with carbohydrates. So chemistry point of view से we'll start with carbohydrates. Should I remove this? Yes. Carbohydrates. लिखिएगा also known as saccharides.
इसको आप लिख लो। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, etc. Done. Yes, sir. If I talk about initial definition or initial way of defining carbohydrates, initially it was thought that carbohydrate containing carbon and water. ठीक है, फॉर्मूला इनिशियली जो मैथमेटिकल वे में जो डेफिनेशन दिया गया वो इस तरह का था, CxH2O होल y। तो बोला गया एनी कंपाउंड विद द फॉर्मूला दिस, उसको क्या बोल दिया गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इनिशियली या ओरिजिनली carbohydrates were considered as hydrates of carbon, and with general formula this। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है। क्या हम लोग इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं? तो C6 है, और H2O यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 6। है ना, इसको लिख लो। डन। यस सर। अब इसमें एक नोट लिख लो, बिकॉज ये जो था वो डेफिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। लिख लीजिएगा, many compounds like HCHO। अगर आप HCHO को देखोगे तो ये क्या है, ये C1H2O, यही तो है। CH3COH, इसका भी फॉर्मूला फिट हो जाएगा। देखो C2H2O होल कितना कर दें, 2, ये भी फिट हो गया है ना, फॉर्मूलाज में फिट हो रहा है। तो many compounds like HCHO, CH3COH fit into the formula, but they do not exhibit the characteristics of carbohydrates. At the same time, all carbohydrates also do not fit into formula CxH2OY. There are many compounds which are carbohydrates
there are many compounds which are carbohydrates by their chemical behavior. By their chemical behavior, but do not have molecular formula CXH2OY. Do not have molecular formula CXH2OY. दो एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो. एक है रैमनोज बोलते हैं उसको. इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H12O5 है. यू विल नॉट बी एबल टू फिट दिस इनटू CXH2OY वाला फॉर्मूला. इसी तरह एक ये 2-deoxyribose C5H10O4. इसको भी आप फिट नहीं कर पाओगे. तो ये एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल्स काफी हैं. हो गया बेटा? Yes, sir. So we talked about old definition. अब आते हैं न्यू डेफिनेशन क्या है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसमें लिखेगा a large number of their reactions have shown that carbohydrates contain specific functional groups. So chemically, carbohydrates can be defined as optically active polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis. ठीक है. जैसे अगर आप इसकी बात करोगे बेटा, है ना, स्टार्टिंग वाला जो है और से पहले, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? ग्लूकोज इज द बेसिक यूनिट आप मानकर चलते हैं, जिसको हाइड्रोलिसिस के बाद फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर आप सुक्रोज ले लोगे तो वो नीचे वाली डेफिनेशन में फिट हो जाता है. सुक्रोज का क्या होता है? अगर उसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज को भी इसी कैटेगरी में रखोगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, और सुक्रोज को भी रखोगे. ठीक है. ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड होता है और फ्रुक्टोज के बाद कीटोनिक ग्रुप होता है.
डन बेटा? यस। अब आप इसमें सब हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन on the basis of their behavior, on the basis of their behavior, on the basis of their behavior towards hydrolysis, carbohydrates are classified into three categories. Carbohydrates are classified into three categories. One is monosaccharide. Another is oligosaccharide. And third is polysaccharide. Monosaccharides, oligosaccharides, polysaccharides. इसके लिए नोट लिखेगा बेटा। मोनोसैकेराइड के लिए नोट लिखिए पहले। A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further. A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler units. A carbohydrate that cannot be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyketone. Polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyketone is called a monosaccharide. Clear? Around 20 monosaccharides are known to occur in nature. Around 20 monosaccharides are known to occur in nature. यहाँ तक लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. इसमें एग्जाम्पल वही है पुराने। ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया। अभी इन सब के बारे में बताएंगे आपको एक्सेट्रा। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज एक्सेट्रा। तो ओलिगोसैकेराइड्स के लिए लिखिएगा carbohydrates that give 2 to 10 monosaccharide units, 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. On hydrolysis are called oligosaccharides. These can be further classified into disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc.
disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. Depending upon the number of monosaccharides they produce on hydrolysis. Depending upon the number of monosaccharides they produce on hydrolysis. The most common saccharides are sucrose, maltose, lactose. The two units obtained on hydrolysis of disaccharides. Should I go slow or yeah, this is fair enough? आप बता दो मेरे को, हाँ? The two units obtained on hydrolysis of disaccharides may be same or different. It can be same or different. Like if I take example, sucrose on hydrolysis gives 1 unit of glucose and 1 unit of fructose. Glucose C12H22O11, C6H12O6, and fructose C6H12O6. दोनों डिफरेंट है, एक में एल्डिहाइड यूनिट होता है, एक में कीटोन. यहीं पर लिख सकते हैं कि maltose gives 2 units of glucose only. And lactose gives 1 unit of glucose and 1 unit of galactose. Galactose का फॉर्मूला वही है बेटा. तो स्ट्रक्चरली केवल हमको देखना पड़ेगा और कुछ. So lactose gives 1 unit of glucose and 1 unit of galactose. देखो डायरेक्टली ये सब क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ना उतना आप अच्छे से रीड करना. डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हें इसी तरह से मिलेगा, ठीक है ना. वो सीधे पूछेगा दिस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, नीचे स्ट्रक्चर बने होंगे या नाम लिखे होंगे. देखिएगा आगे पॉलीसैकेराइड्स. उसके लिए नोट है carbohydrates which give a large number of monosaccharide units. A large number of monosaccharide units on hydrolysis are called polysaccharides. Carbohydrates which give a large number of monosaccharides units are on hydrolysis are called polysaccharides. एग्जाम्पल लिख सकते हो आप बेटा. स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन. और फॉर्मूला जनरली इसका अगर लिखना हो तो हम लोग ऐसा लिखते हैं C6H10O5 पॉलीमर है ना ये.
Polysaccharides do not have a sweet taste. Polysaccharides do not have a sweet taste. Hence, they are also called non-sugars. Non-sugars. Mono and oligosaccharides are called sugars. Mono and oligosaccharides are called sugars. डन बेटा, सबने लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. अब आप लिखिएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. तो इसमें हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक को एल्डोज बोलते हैं, नाम से देखो पता चलेगा आपको, और एक को कीटोज बोलते हैं. इसका मतलब क्या है कि एल्डोज में क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड यूनिट होगा, ग्रुप होगा, और कीटोज में क्या होगा? कीटोन होगा. तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इफ मोनोसैकेराइड कंटेन an aldehydic group, तो उसको एल्डोज बोलेंगे. और जनरल फॉर्मूला उसका ऐसा लिखते हैं CHO CHOH होल N CH2OH. ठीक, जैसे ग्लूकोज जो होता है वो ऐसा होता है. ये ग्लूकोज हो गया. ठीक, कीटोज में क्या होगा? हम लोग यहाँ लिखेंगे इफ monosaccharide contains कीटो ग्रुप, तो उसको हम लोग कीटोज बोलेंगे. और इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखना होगा तो CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड आएगा, फिर CHOH आएगा. इसमें N-1 कर देंगे क्योंकि बीच में हमको एक्स्ट्रा CH चाहिए था ऊपर, और नीचे CH2OH. और अगर आप फ्रुक्टोज का फॉर्मूला याद करें तो ऐसा होता है. ये फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज. ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो. Done, sir. इसको फर्दर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बेटा. जैसे एल्डोज आप लिखते हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल्डो ट्राइओज, एल्डो टेट्रोज,
ट्राइयूज मतलब 3 कार्बन एटम्स आर देयर, है ना। सर वो हेप्टोस होगा ना, एल्डो हेप्टोस। क्या बेटा? एल्डो हेक्सोस के नीचे एल्डो हेप्टोस होगा ना। हाँ, ये गलत लिख दिया मैंने, हेप्टोस का। अब इसमें लिख सकते हैं मोस्ट, जो नेचुरली अकरिंग है। देखो 6 में 6 वाला ही मतलब ज्यादा रहता है, उससे पेंटोज और हेक्सोस लिख सकते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड ये लिखो। Done, sir. हम्म, Sir, 1 minute previous page. yes. Done, sir. इसको क्लासिफाई करिए बेटा, जो अभी कैटेगरीज बनाई हमने उसके बेसिस पे, सेकेंड टाइप वाला। वेरी गुड।
डन। Yes, sir. इसमें कुछ है नहीं, वो सीधे सीधे आप ग्लिसरॉल्डेट जो है उसको आप एल्डोट्राइओज लिख दो, एरिथ्रोज को आप एल्डो टेट्रोज लिख लो, राइबोज के एल्डो पेंटोज लिख दो, ठीक है। ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज लिख दो, फ्रुक्टोज को कीटो हेक्सोज लिख दो। ये सब सिंपल सिंपल आप लिख सकते हैं इसमें क्लासिफिकेशन में। ये तो आपको इसको हटा देना। हाँ, नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, फिर भी आप लिख लो बेटा। नॉमेनक्लेचर में आप केवल इतना ध्यान रखना बेटा कि अगर जो बॉटम यूनिट है, ये क्या है, बॉटम पार्ट है। अगर ओ एच राइट हैंड साइड है, एच लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या लिख देंगे, डी कॉन्फिगरेशन, कैपिटल डी। और सिमिलरली बॉटम यूनिट देख करके आप पता कर लेंगे, एल कॉन्फिगरेशन, कैपिटल, ठीक है। और स्मॉल डी दैट इज पॉजिटिव, या स्मॉल एल दैट इज नेगेटिव, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये हाईलाइट कर लेना आप। और 16, बिकॉज कायरल सेंटर्स आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज में देखोगे तो 16 आपके आइसोमर्स निकलेंगे, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। आप जो C6H12O6 उठाते हो, पिक करते हो, तो इसमें 4 कायरल कार्बन, ठीक है। तो 16 इसमें स्टीरियो आइसोमर्स बने, एंड ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर नंबर ऑफ मेसो पूछा जाएगा तो 0 लिख देना, तो भी कॉपी कर लो। डन बेटा। Yes, sir. हम्म। अब परहाप्स ये भी आपको मालूम होगा, मैंने बताया ही था पहले भी, जैसे केस अगर मैं ले लूं ये वाला, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप याद रखिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एरिथ्रो, याद है, आइडेंटिकल वाला फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड पे दिखाई देता है तो उसको Yes, एरिथ्रो sir. बोल देते हैं। और डी क्यों बोल रहे हैं, डी तो यहाँ की वजह से बोल रहे हैं ना, इसकी वजह से डी आएगा, और इसकी वजह से एरिथ्रो आया। अब मान लो मैं इसी का ऐसा वर्जन लिख दूं, तो तुम इस
एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने। हाँ, इसका मैं ये वाला वर्जन लिख, इसको क्या बोलेंगे बेटा? L erythro. यस, तो इसकी वजह से एल आ गया, और एरिथ्रो तो हमको ऊपर से दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप थ्रियो आइसोमर बना सकते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें लिखाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो क्या है, एक ही बार एग्जाम देना है, और जो एग्जाम्स में आते हैं अगर हम वही चीजें नहीं लिखाएंगे, ऑल दो पहले भी कराया है मैंने, बट फिर भी इसको भी आप कॉपी कर लो बेटा। डन सर। हम्म। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चरली आपको याद रखना है बेटा। इसमें खास बात ये है कि CHO के नीचे जो पहला कार्बन आपको दिखाई देगा उसका OH राइट में रखना है, फिर OH लेफ्ट में जाता है, फिर बाकी जो दो OH आएंगे फिर से राइट में आ जाते हैं। ये डिजाइन आपको याद रखनी है। ये किसकी डिजाइन याद रखनी है बेटा? ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज है ये, और पॉजिटिव इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप याद रखना, माइंड में रखना। इसी तरह से CHO, OH, H, H, OH, H, OH, OH, H, CH2। ये डी गैलेक्टोज है। इसी तरह से CHO, कई बार इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, और आप भी अपने नोटबुक में बार बार ड्रॉ करिएगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा। ये मैनोज है। इसमें केवल इतना, वो जो पहले से अपने को मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है बेटा? ग्रुप्स कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, राइट। Yes. और वर्टिकल लाइन जो है वो इंडिकेट करती है ग्रुप्स अवे। ठीक है, ये कई बार इसलिए भी है कि जो डिजाइन होगी वो तुम्हें हो सकता है ऐसा भी दे दे, ऐसा CHO लिखा होगा, है ना, यहाँ पर एटम करके लिख देगा, ऐसा डिजाइन बना देगा। तो इस तरह की डिजाइन भी आपको दे सकता है, तो इसीलिए मैंने बोली। नाउ विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, या ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आई रिमूव दिस पेज। Yes, sir.
Note number 1. Glucose occurs freely in nature. Glucose occurs freely in nature as well as in combined form. It is present in sweet fruits and honey. Large amount of glucose is present in grapes. Note 2. Glucose is aldohexose, also known as dextrose. Dextrose, because it is dextrorotatory. It is the monomer of many larger carbohydrates. It is the monomer of many larger carbohydrates. Larger carbohydrates. Example: starch, cellulose, maltose, etc. So starch, cellulose and वही जो अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, स्टार्च, सेल्यूलोज एटसेट्रा लिख लो, मैल्टोज भी है, स्टार्च, सेल्यूलोज, मैल्टोज एटसेट्रा. ठीक है. अब अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन सोचोगे तो वही है जो तुमने अभी भी लिखा. जैसे आप इसको पिक करो, सुक्रोज है ना, जो जितना एबंडेंट वे में मिलेगा वही वो ज्यादा यूज करते हैं. तो C12H22O11 उठाया, ये इसको तो हम लिखते हैं बॉइलिंग सुक्रोज with dilute H2SO4 और HCl. तो मतलब हाइड्रोलिसिस कराना है और कुछ नहीं. एसिड कैटलाइज C6H12O6 प्लस C6H12O6. तो ग्लूकोज 50%, फ्रुक्टोज 50%. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. इसके अलावा बॉइलिंग स्टार्च, ये भी हो सकता है. बाय बॉइलिंग स्टार्च with H2SO4. C6H10O5 ये पॉलीमर है, तो यही फॉर्मूला इसका लिखते हैं हम लोग. तो NH2 हमने डाल दिया यहाँ पर, है ना. H प्लस टेम्परेचर करीब 393 केल्विन के आसपास रहता है, एंड 2 to 3 ATM प्रेशर.
Done, sir. अब इसमें प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज help in finding structure या in writing structure। जैसे आप लिख सकते हैं रिडक्शन विद HI। तो इसमें लिखेंगे कि HI reduces all COH। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। CH या इसको इस तरह से नहीं, इसको या HI से पहले एक काम ये करते हैं, बिकॉज हमको ये नहीं कंसीडर करना है। इससे पहले एक हम लोग रिएक्शन लिखेंगे Br2H2O के साथ। पहले उस पे तो लिखिएगा Br2H2O, या एक नोट लिखिएगा, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, glucose gets oxidized to 6 carbon atoms. Sorry, glucose gets oxidized to gluconic acid. Gluconic acid ऐसा करके लिखिए। On reaction with mild oxidizing agent like bromine water, like bromine water. This indicates that carbonyl group is present as aldehyde group. Carbonyl group is present as aldehyde group. क्लियर बेटा? Yes, sir. फिर इसका दूसरा लिखिएगा HNO3, stronger oxidizing agent। तो यहाँ लिखिएगा stronger oxidizing agents such as concentrated HNO3 oxidizes glucose to glucaric acid। Glucaric acid।
अनफॉर्चुनेटली ये रिएक्शन तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि तुम प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा और फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। Then should I remove this? Yes, sir. अब इसमें रिडक्शन विद HI लिख लो। रिडक्शन विद HI में वी गेट नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन समझ रहे हो ना? नॉर्मल हेक्सेन का मतलब ये हो गया कि ये सब स्ट्रेट लाइन में है ना। ऑल कार्बन एटम्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन। Done, sir. फिर इसके बाद आप H2NI भी लिख सकते हो बेटा। तो H2NI में ऐसा भी दिखा सकते हो आप। इसको ग्लूसीटॉल बोलते हैं या फिर सॉर्बिटॉल। इसका अगर तुमने HI के साथ रिडक्शन करा दिया तो क्या मिलेगा? उसी स्टाइल में वो आप लिख सकते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। बट इसमें एक्चुअली एक इसको अवॉइड करते हैं। इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन में चेंजेस भी आते हैं और वो पूछता है नहीं, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। इसके बदले हम लोग इसका लिखते हैं AC2O। AC2O क्या होता है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो है ना एनहाइड्राइड, ये जितनों के साथ रिएक्शन करेगा इसका मतलब उतने वहां OH होने चाहिए। तो यहाँ पर CH2OAC, CHOAC होल 4 और CH2OAC4। ठीक है, 6 पोजीशंस पे आपका OAC लग गया। तो अगर यहाँ पूछ भी सकता हाउ मेनी मोल्स ऑफ AC2O आर यूज्ड, तो आप आंसर देंगे 6 मोल्स। ये आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगर आप चाहो तो इसकी रिएक्शन HCN के साथ भी दिखा सकते हो। तो एल्डिहाइड वाला पार्ट हमको मालूम है रिएक्शन कैसा करता है। एक Cl लग जाता है और ये OH बन जाएगा। और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या हो जाएगा? Cn क्या बन जाता है? एसिड डेरिवेटिव है, तो एसिड बनाएगा हाइड्रोलिसिस पे। अगर तुमने इसका रिडक्शन करा HI के साथ तो COH को छोड़ के बाकी सारा पार्ट रिड्यूस हो जाता है। तो भी लिख सकते
Did I remove this? 1 minute, sir. रिएक्शंस भी डायरेक्टली आती हो रहा है सब क्या? Done, sir. अब इसमें एक HiO4 के साथ भी आप लिख लो। याद है हम लोगों ने HiO4 के साथ क्लीवेज दिखाया था, तो ग्लूकोज होता कैसा है, ये है ना? मैं ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा, स्ट्रक्चरली केवल कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं। CHOH4 दिखा दिए और फिर CHO, तो क्लीवेज कहाँ कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना? और मैंने आपको क्या स्टाइल सिखाई थी कि जहां भी क्लीवेज है उसको OH 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 दे दो, तो फिर क्या होगा? जब सबको आप OH 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 दोगे तो 5 जगह आपको ये एसिड मिलेगा, फॉर्मिक एसिड, ऐसा लिख दिया, प्लस एक आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, पहला वाला, ये आपका प्रोडक्ट, इसको भी लिख। ये सारा जो प्रॉपर्टीज है बेटा, ये आपको क्या डिफाइन करेगा? वो जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, उसको एक्सप्लेन करता है। Done, sir. नहीं बेटा, somebody is asking कि क्लीवेज नहीं होगा, लास्ट में होगा बेटा। जो डाइऑल नहीं, ये भी चलता है नोट्स में, आप ध्यान से देखो। मैंने ये सब में क्लीवेज होता है बेटा, एसिड नहीं होना चाहिए, एल्डिहाइड्स कीटोन्स चलेगा। और इसी तरह से दो OH है, ये भी क्लीवेज होता है, ठीक है। अब इसी में आप एक रिएक्शन लिख लो। ग्लूकोज की लिखेंगे तो फ्रुक्टोज की रिएक्शन सेम मैनर में ही होती है। याद करो, प्राइमरी अमाइंस के साथ रिएक्शन CHO की, फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्राजोन जैसा, अगर आप याद करें, इस तरह का मैंने लिखाया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अगर मतलब यहाँ 3 मोल्स आप ले लेते हैं, ये आप यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, तो इट इज बेटर कि आप इसको याद रखें। अब इसमें इसमें भी अगर हम वही Ac2O डाल देते हैं, तो एसाइल ग्रुप कहते हैं AC, ये क्या हो जाएगा? AC2O, तो बड़ा क्या बनेगा? CHO को छोड़ दो, बाकी सब जगह तुम OAC लगा सकते। तो यहाँ पर कितना AC यूज होगा बेटा? 5 मोल्स, है ना? तो ये इंडिकेट क्या करता है कि ग्लूकोज में 5 तुम्हारी OH होनी चाहिए।
Done, sir. इसमें लिख लीजिएगा बेटा एक नोट, टॉलेंस रिएजेंट, पेहलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, पेहलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन can't be used to differentiate aldoses from ketoses. Aldoses from ketoses. Both aldose and ketose both are capable of reducing tolerance reagent failing solution. Both aldose and ketose both are capable of reducing tolerance reagent and failing solution. ब्रैकेट में लिख देना a characteristic of alpha hydroxy ketone. In the bracket you write a characteristic of alpha hydroxy ketone. Both ये लिखा क्या ब्रैकेट, a characteristic of alpha hydroxy ketone aldehyde. Have you written this? ब्रैकेट में Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें आप फर्दर लिखिएगा, होता क्या है इसमें लिखिएगा both TR means both TR and FS are alkaline reagents. And the treatment of sugars with alkali, treatment of sugars with alkali can cause extensive isomerization. It is because of this isomerization. Ketose reduces tolerance reagent and failing solution. Ketose reduces tolerance reagent and failing solution, even though it does not contain any aldehydic group. It does not contain any aldehydic group. Look here. CHO, COH, COH, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है. अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम दिखाऊं तो समझ लो ये एल्डिहाइड है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करा दो तो इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म. अब होगा क्या कि ये कैसे पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड इधर से कीटो से आया कि इधर से आया है ना? तो इसका तुम ये स्ट्रक्चर बना सकते हो. राइट, यानी कि एक कीटोस इक्विलिब्रियम कर सकता है किसके साथ, एक
एल्डोस के साथ, राइट। तो इस तरह से प्रोसेस बढ़ता है। अब इसका तुम आगे भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर आया फिर ये नीचे और जाएगा, फिर इस तरह नीचे जाते जाते इस तरह से पूरा चलता चला जाता है, राइट। तो इसीलिए मतलब इवन कीटोज जो होगा, लेकिन वो अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए तभी, तो कीटोज है वो अल्फा हाइड्रोक्सी उसको बोलेंगे। तो ये भी जो है टेस्ट देगा टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन के साथ। इसको आप लिख लो, और इसको चाहिए तो ये भी लिख सकते हो बेटा। इसको हम बोलते हैं डी ये कॉपी कर लो। सर इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? प्रोनाउंस की जरूरत नहीं है बेटा, आप कर लो अपनी मर्जी से, क्या फर्क पड़ता है। ये डन। Yes, sir. अब इसके बाद लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एबव रिएक्शंस, on the basis of above reactions, glucose is assigned a straight chain structure. तो straight chain structure assign किया गया है because of these properties which we discussed. वन टू थ्री, एक और है ये, इसको आप लिख लो बेटा। लिख लिया बेटा। अब आप इसमें लिखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। concept of cyclic structure. The open chain structure of glucose proposed by Bayer. Open chain structure of glucose proposed by Bayer
Am I audible, beta? Yes, sir. Yes, sir. So I was talking about the concept of cyclic structure. The open chain structure of glucose proposed by Bayer failed to explain the following properties, following characteristics. Number one, D-glucose fails to undergo certain reactions typical of aldehydes. It is readily oxidized by Br2 plus H2O, Collins reagent, Helling solution, Benedict solution, but it does not give shift test. And does not form a bisulfide addition product. ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप अपने आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहला ये कॉपी कर लिया बेटा पूरा इसको। Yes, sir. D plus glucose exists in two isomeric forms. Two isomeric forms which undergo mutarotation. Mutarotation. Now, what is mutarotation? लिखिएगा इसमें, when crystals of ordinary D-glucose, when crystals of ordinary D plus glucose, बाहर डैश लगा है, माइनस नहीं है वो, मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री, are dissolved in water, the specific rotation gradually drops. The specific rotation gradually drops from initial plus 112 degree, from initial plus 112 degree to plus 52.7 degree. On the other hand, when crystals of D plus glucose of melting point 150 degree Celsius
मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में लिख देना, obtained by crystallization at temperature above 98 degrees Celsius. Are dissolved in water, the specific rotation gradually rises from an initial plus 19 degree 19 degree to plus 52.7 degree. सर प्लस 19 टू 52.7, वही मतलब एक बार वो नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आता है. The form with higher positive rotation is called alpha D glucose. The form with higher specific rotation is called alpha D glucose, and that with the lower specific rotation is called beta D glucose. Beta D glucose. Beta D glucose. लिख लिया बेटा? Yes, sir. The change in rotation, the change in specific rotation, of these to the equilibrium value is called muta rotation. It's called muta rotation. यानी कि अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स हैं, जिनको आप एनोमर्स भी बुलाते हो. ये मैंने थोड़ा बहुत आपको आइसोमेरिज्म में भी बताया है, एनोमर्स वगैरह के बारे में. ठीक है. फिर आगे लिख लो. These facts can be explained by cyclic structure. These facts can be explained by cyclic structure of glucose. Cyclic structure of glucose. Cyclic structure is formed through intramolecular hemiacetal formation. Cyclic structure is formed through intramolecular hemiacetal formation. देखो, ये दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर अपने को मालूम है. ठीक, इसको ओपन चेन बोलते हैं, ओपन चेन. अब इसमें क्या होगा कि साइक्लिक फॉर्म बनेगा. साइक्लिक फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक OH का अटैक यहाँ पर आप विजुलाइज करना. तो जब यहाँ अटैक होगा तो ये पाइल अक्रॉस शिफ्ट होंगे. याद करो, एसिटल हेमियासिटल फॉर्मेशन. तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कार्बन भी कायरल बन जाएगा. पहले कायरल नहीं है, लेकिन अब कायरल बन जाएगा. जब अब कायरल बनेगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं. या तो आप इसका OH लेफ्ट में लगाओगे और H राइट में, या फिर क्या दूसरा पॉसिबिलिटी है, OH राइट में H लेफ्ट.
ये क्लियर है बेटा? दो पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, बाकी चीजें वैसी जैसी थी, यानी कि ये OH राइट में था तो राइट में, ये OH लेफ्ट में था तो लेफ्ट में, राइट तो राइट, जो जैसा है वैसा बना दिया। हाँ, अच्छा ये वाले ने तो अटैक ही किया है, तो इसको तो कनेक्ट करोगे, इसका ऑक्सीजन ये ले लिया और एक बॉन्ड यहाँ ऐसा शिफ्ट कर दिया। याद रखना यहाँ कार्बन नहीं है, देर इज नो कार्बन, कार्बन मैं डॉट लगा रहा हूँ वहीं पर है केवल, बाकी केवल डिजाइन है। कार्बन नहीं चेंज हो सकता ना, कार्बन तो उतने ही रहने वाले। एक तो ये पॉसिबल फॉर्म हो गया, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर भी मैं डॉट लगा रहा हूँ, यहाँ कार्बन, दैट मीन्स ये दो फॉर्म्स आपको मिल गए बेटा, समझे ना, साइक्लिक। तो ये वही रिएक्शन है हेमी एसिटल फॉर्मेशन वाली। अब इसका डिजाइन जो है ना, अच्छा इसको हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं और इसको हम लोग बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ये हमारा ओपन चेन डी ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, लिख भी देता हूं मैं, ओपन चेन ई प्लस ग्लूकोज। इसका बेटा कितना स्पेसिफिक रोटेशन है, 52.7 डिग्री। ठीक है, अब जब इस फॉर्म में जाते हैं तो इसका आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा भी तुम्हें एग्जाम्स में मिलेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ पर है, फिर ये डिजाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर आप 4-5 बार प्रैक्टिस करना, रट लेंगे। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये आपको रटना पड़ेगा। ये अल्फा टी ग्लूकोज है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है बेटा, 112। इधर हम लोग आए, इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। दोनों में केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ OH ऊपर चला जाएगा साइक्लिक वाले उसमें, बाकी सब वही डिजाइन है। तो आप एक भी डिजाइन याद रखेंगे और इस पॉइंट के पोजीशनिंग को ध्यान रख लो, बस हो गया तुम्हारा काम। बाकी सब ऐसे ही है, बाकी में कोई चेंज नहीं। इसको क्या बोला बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक, अब इसका कितना होता है, मैंने बताया था 19 डिग्री, सर प्लस 19 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन। इसको कॉपी कर लो बेटा, ये जो 6 मेंबर रिंग है इसको पैरानोज बोलते हैं।
Then बेटा Yes, sir. इसका एक चेयर फॉर्म भी कई बार दे देता है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है, ज्यादा तो वही वाला फॉर्म आएगा, और चेयर फॉर्म इस तरह से दे सकता है वो आपको। 1 2 3 हो गया, 4 5 ऑक्सीजन यहाँ डाल। तो जैसे इसमें इस तरह से देगा, H यहाँ दे दिया, OH यहाँ दे दिया, है ना, H यहाँ दे दिया, OH यहाँ दे दिया। इस तरह से आपको चेयर फॉर्म भी दे देगा। ऐसा कुछ कम ही चांस है, आप क्वेश्चंस वगैरह कहीं से करोगे तो पता चलेगा, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिख लेना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर डायस्टेरियोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर डायस्टेरियोमर्स। They differ in configuration at C1 carbon, first carbon. They differ in configuration at C1 carbon. Such a pair of diastereomers are called anomers. Such a pair of diastereomers are called anomers. Mutarotation is due to opening and closing of hemiacetal ring. Mutarotation is due to opening and closing of hemiacetal ring. समझ गया बेटा? अब आप ध्यान से सुनो बेटा, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं रेगुलर मैनर में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, जस्ट सी, ये दिया हुआ है, जब कैसे पता चलेगा कि ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा, बाकी अपना मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं, जस्ट फोकस ऑन दिस कार्बन। यही कार्बन है जो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये चीज ब्रेक होगी, यानी जब ये म्यूटा रोटेशन के लिए अगर सोचेंगे भी तो ये ब्रेक करेंगे हम इसको, है ना। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको हम OH दे देंगे, तो यानी कि सेम कार्बन पे आपको एक OH पहले से था, एक OH फिर आ गया, राइट। और एक कार्बन पर 2 OH आने से क्या हो जाएगा बेटा, वो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड दो, ऐसा, राइट। तो अगर ये ओपनिंग करने पर तुम्हें 2 OH मिल जाते तो समझ लेना म्यूटा रोटेशन के लिए यस है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो म्यूटा रोटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे, तो वो तभी होगा जब ये ओपन होकर के C डबल बॉन्ड दे पाए, और अगर C डबल बॉन्ड नहीं दे पाता है तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं ये कर दूं तुम्हारा, ध्यान से देखना बेटा, यहां मैंने OCH3 लगा दिया, अब बताओ क्या ये म्यूटा रोटेशन शो कर पाएगा? इसके लिए क्या लिख देंगे, म्यूटा रोटेशन के टाइम पे क्रॉस, रिड्यूसिंग शुगर के टाइम पर क्रॉस। क्यों?
क्योंकि जब तुम इसमें ओपनिंग कराओगे तो यू विल रियलाइज कि एक कार्बन पे आपको OH तो मिला, लेकिन ये चीज OCS थे, तो यहाँ आपको C डबल बॉन्ड नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप का कुछ दिया है तो नो मीटर रोटेशन। इज इट क्लियर बेटा? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तुम एग्जाम में। सर प्रीवियस पेज पे मैं लिखा हूँ। क्या बेटा? सर प्रीवियस पेज पे नोट करना है। डन सर। अब इसी तरह से आप फ्रुक्टोज का भी लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइसेकेराइड करेंगे। फ्रुक्टोज में स्ट्रक्चर बना लो, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसी स्टाइल से हैं। ये आप लिख लो बेटा। इसमें अगर आप Br2H2O लिखोगे तो यहाँ लिखेंगे नॉट ऑक्सीडाइज। इसमें अगर HI डालोगे तो इसमें भी नॉर्मल हेक्सेन, यही इंडिकेट करता है कि स्ट्रेट चेन में कंपाउंड है। टॉलेंस रिएजेंट, यस। फेहलिंग सोल्यूशन, यस। अब मान लीजिए NH2OH डाल दोगे तो पूरा वही है जैसे एल्डेट्स कीटोन्स की रिएक्शन की थी हमने, उसी स्टाइल में सब है। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे याद दिलाना डाइसैकेराइड्स करने के लिए। हाँ? ये आप ड्रॉ कर लो वरना इसका भी साइक्लिक फॉर्म है। अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज -92, बाकी सब वही, केवल यहाँ पर चेंज आता है। ये भी एनोमर्स है बेटा, इनका भी स्पेसिफिक रोटेशन लिख सकते हो। इसको कॉपी करो, फिर आप रेस्ट करो और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना डाइसैकेराइड स्टार्ट करना है। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए। डन सर। इसको ले लो फिर आप लो। जितना भी मैं लिखा रहा हूँ वैसे वो इनफ है, बट फिर भी आप NCERT जरूर पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वगैरह के लिए। Those who have copied the can leave.